Hello everyone, welcome to Perfect Woman, India's first talking magazine with me, Dr. Khushi Gurubai Thakkar. And here I'm all set to welcome my today's Perfect Woman. She's Drishti Thakur. She is the performer from the television that goes in color. The name is Namak Ishka. So she is going to be joining us by 5. So all set. Hello Manju. It's good to catch up everyone. Hello. Just check. Okay. Hello, hi. Hello, Vahida. So next week we will be talking about all health conditions. So the entire live sessions will be completely different than these live sessions which we are running right now, because in that the real stars, the real performers from the medical industry will be joining with us, guiding us how we can take care of our skin, our health, and what are the different modules that we have to accept in our day-to-day life. So that would be more interesting. So I want everyone to be joining for the next week also. So please be connected. It's good to see everyone getting connected. हाय प्रतिमा. अब जब तक कनेक्ट नहीं होते तब तक वी कैन डिस्कस विद ईच अदर. हाय. Hello. Hello. Hi. These Instagram ID usernames are so difficult to pronounce also because I'm unable to read it. Arun Yadav Fitcon, right? Yeah. Yeah. Mimi. Okay. Shweta. Okay. Pratima Yadav. Vahida. Meshram. Anjali. Yeah, hi Drishti. So here my perfect woman is all set to join. I'm super excited, and here I welcome her. Here I'm sending a request to her. Okay, that's interesting. Fitness consultancy, wonderful. Okay, you're from Pune. These days everything is digital, so even if you're in Pune, it's all over the world. So I'm sending a request to my sweet little cutest perfect woman for today, Drishti. Okay, yeah, so Drishti will be joining with us very soon, and she's the actress, she's a performer from the Colors television that's running right now. It's Namak Ishka, and she's been loved by everyone, and here she's going to join us to share her journey with us. That's interesting.
It's not just about patience, it's all about today fitness is what we all have to accept it in our life. So it's add feathers when you have been associated with any pageants. That's good to know that you're a part of Perfect Woman, and everyone is a part of Perfect Woman. You all are my family ultimately. At the end of the day, I'm so proud of everyone. I'm just checking. That's again adding feather, working with crime department. Again, it's a good point. Oh, yes, I agree. That's nice to know. I know Geo King and King because I know Kainat Arora was a part of it. She's one of my very good friend. Surbhi will be coming joining with us very soon. I have been getting lots of mails and messages for her to be on the cover. So most probably, yes, she will be joining very soon. I really feel there is no network issue today because the other day also we had to face a lot of network issue. Kainat Arora, of course, she will be joining with us very soon. She is particularly, if anybody knows her personally, you know how choosy she is. So she is very good at interactions and interviews and everything, but when it comes to live, she takes a couple of minutes to think, I feel like. So she will be joining very soon. It's again a good thing to know about the book that you have written on rapes because it's a very sensitive subject. I feel that for those subjects you need to be quite brave enough. I am a member of American Heart Association. It's very nice, interesting. And here my perfect Mrs. India is also the year Rima Bell. Hello ma'am. Hello sweetheart. Nadi Chitkar Akhir Kab Tak. Nice. Yes, Rima Bell is the winner of Perfect Woman, Perfect Mrs. India. Okay, are you live with Debatana Sahai? It's almost 10 minutes we are delayed and I'm waiting for my perfect woman to be joining. So I'll just see. No, we haven't getting a lot of calls, but it won't be perfect Mrs. Goa. It will be perfect Mrs. India itself. But yes, there will be some, you can say, as we divide everything. Just a moment, I'll just send a request to Drishti again. Yes, I feel now my Drishti is here. So you guys, you have to be connected with us because right now my perfect woman is joining with me. Perfect woman. Hello.
I'll send a request to her right away. Just see. Okay. Hi, sweetheart. How are you? Hi, I'm good. How are you? Very fine, sweetheart. And once again, congratulations to be one of the youngest and cutest part of Namakishka. Thank you, thank you, thank you so much for having me here. Yes, it's a pleasure. You are my perfect moment for today, and there is lot many things to be discussed about. But we'll be starting with your short intro, and then this is how's your journey like so far? Because everyone is willing to know about it. We've been discussing it. It seems we are 12 minutes late, but people are talking Yeah, about yeah, lot many sorry. things. Yeah. So tell me something about you, Drishti. What made you to get into acting world? You've been so beautiful. Your focus is clear enough getting into acting world. So what made you to step into this? For me, acting was never my choice to become an actor because I was always wanted to become a model, not an actor. But then I came into acting field. I started slowly, slowly. So I started giving auditions, and then I come here. So tell me something about you. What are your hobbies? Were you always into the fascination world of fashion world and doing modeling and acting and all that since your childhood? Yes, of course. From childhood, I was very, very much like I was always wanted to become an actor. First, initially, I was wanted to become a model, but then I started doing acting, and then I started going in fashion field. I started learning dancing and all, and dancing is my main hobby. Okay, so how it was your experience when you told your parents that you want to be? Because normally in India, even today, there are many parents who are conservators, and when Yeah. it comes to their girls stepping into the field of acting, and like पहली चीज वो लोग सोचते हैं no. So how No, was your experience for it? फॉर मी मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. इवन माई मॉम ओनली डिसाइडेड फॉर मी टू बिकम एन एक्टर. मेरी मॉम ने ही मुझे Wow. बताया ये फील्ड तुम्हें चूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग मॉडलिंग एंड एयर होस्टेस यू शुड ट्राई इन एक्टिंग. तो मेरी मॉम ने ही मुझे एक्टिंग का फील्ड दिखाया मेरे साथ स्टार्ट टू एंड. मतलब हर चीज वेन एवर आई गो टू ऑडिशन वो मेरे साथ ही जाती थी ऑडिशन के लिए भी. तो Wow, उन्होंने मुझे that's काफी wonderful. सपोर्ट किया है. मेरी फैमिली ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है. वाह सो आई फील ऐसे बहुत कम इंटरव्यूज होते हैं मेरे जिसमें मुझे मेरी परफेक्ट वुमन से ये सुनने मिलता है कि पेरेंट्स के सपोर्ट से हुआ बिकॉज नॉर्मली हर घर में ये होता है कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माय पेरेंट्स. सो यू आर रियली अ ब्लेस्ड चाइल्ड. मुझे कहना चाहिए आप Thank बहुत ही ब्लेस्ड हो कि आपके लिए हर चीज बहुत स्मूथ हुई इस चीज के लिए. तो अभी पेरेंट्स तो आपके साथ हमेशा से थे. तो व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री इतनी आसान तो नहीं होती. व्हेन इट you have when you बिल्कुल. decide to do something there are a lot of mountains you have to cross. So how was your experience? Did you face any challenges while going through it? Yeah, of course, I had faced because when I started giving auditions, my mom was there with me. But in 2016, my mom passed away, and after that, it was very much difficult for me to face this world all alone. And then also, I continued this thing. I started giving auditions again. After 3 4 years, I started giving auditions. For three Okay. four years, I did nothing. I was just sitting at home and doing my studies. And उसके बाद auditions दिया and I got this show. That's wonderful. So how's the experience जब आपने पहले दिन शूट किया था तो first day जब आपने शूट किया how was your experience? Normally people it's like First butterflies day, in the. yeah, I was very excited, but थोड़ा सा nervous भी थी कि मेरे co-stars कैसे होंगे, supportive होंगे या नहीं होंगे, या मेरी director कैसे होंगे, मैं कैमरा पीस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. बट एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ. बहुत ही अच्छा गया. मेरे co-stars बहुत बहुत अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग एंड आई एम लकी फॉर दैट. बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज को लेके. मतलब एक्टिंग को लेके, कैमरा फेस करने को लेके, हर चीज को लेके दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. दृष्टि when it comes to आप you've been into the industry for years now और अभी आपने इतने सारे episodes कर लिए हैं. Everyone is liking your parts, everyone is appreciating and we see a lot many things like a girl go getter है, she's trying her best to give her performance in a way that people love it and no wonder you have won hearts of many in this case. तो ये सब जब journey
जब यहाँ तक आप पहुंचे, सो डिड यू लर्न दीज स्किल्स या सब कुछ नेचुरली करते गए? सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला है, बट मैंने सोचा कि मुझे फ्लो के साथ जाना चाहिए, कि मुझे क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे साथ में कि हम वो चीज को ले ही नहीं पाते, वी कैन नॉट टेक दोज थिंग्स। कितनी चीजें ऐसे होते हैं कि लोग हमसे किस वे में बात करते हैं, जब हम सेट पे जाते हैं, दे थिंक कि नहीं ये बहुत ही छोटे आर्टिस्ट हैं, न्यू हैं, तो न्यू आर्टिस्ट को हमेशा ऐसा ट्रीट किया जाता है कि नहीं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एंड नॉट, दे आर लाइक ओके, कि मतलब बहुत ही नॉर्मली ऐसा ट्रीट करते हैं, जैसे कि नया मतलब पुराने आर्टिस्ट को कोई भी ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो चीज को लेके हमेशा मेरे दिमाग में वो चीज रहती थी कि पता नहीं वहाँ लोग मुझे ऐसे ही ना ट्रीट करें कि मैं न्यू हूँ और मुझे कुछ चीज पता नहीं है। तो वो उस टाइम पे मैंने वो सब चीजें बहुत सीखी कि हमें सिचुएशंस को किस तरह से टैकल करना चाहिए, कि हमें हमेशा हर टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए, लोगों की इतनी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, हमें इतना इफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए वो सब चीजें, क्योंकि जब हम वो सब चीजें इफेक्ट करने लगती हैं वो सब चीजें हमें, तो वो हमारे काम पर असर पड़ता है उस चीज का। तो मैं हमेशा यही एब्सोल्युटली। ट्राई करती हूँ कि मैं कभी भी वो सब चीजों को बिल्कुल भी ना लूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ ताकि आगे की चीजें भी पॉजिटिव हो। दैट्स वंडरफुल। तो जिस तरीके से अभी आपने मुझे कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है व्हेन फॉर द न्यू कमर स्पेसिफिकली इन द इंडस्ट्री, बी इट एनी फील्ड, एक्चुअली देखा जाए तो हर फील्ड में है, इट्स नॉट जस्ट इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वेर एवर यू या गो एंड देयर इज ऑलवेज somebody, someone is there to push you down, आपको खींचने के लिए तो हर ऑलवेज। जगह मिलेंगे। तो हाँ। आपने भी इस तरीके की चीजें फेस भी की है। सो नॉर्मली ऐसे यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, नो डाउट। इन सारी चीजों को आपने अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में असर नहीं करने दिया। बट इन द इंडस्ट्री नॉर्मली इट हैपेंस दैट पीपल गेट इनटू द डिप्रेशन, क्योंकि काम ना मिलना, किसी से जब प्रेजिंग ना सुनना। तो क्या इस तरीके के कभी आपके साथ भी कुछ हादसा हुआ जिसमें आप डिप्रेशन में गए या अपने आप को फाइट किया आपने? अभी तक तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो मेरी मॉम के बाद जो हुआ था मेरे लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन वही था। और काम को लेके अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो। एंड ऐसी चीजें होती है हमें काम नहीं मिलने पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल हमें जरूर मिलना ही है कुछ ना कुछ। हम एब्सोल्युटली, कोई चीज को लेके एब्सोल्युटली। हार नहीं मान सकते। और डिप्रेशन में जाना, बहुत से लोग जाते हैं डिप्रेशन में काम नहीं मिलने की वजह से, लोगों को बहुत सारी टेंशन हो जाती है ऑफ कोर्स, बट आई थिंक सो हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए, एंड और हमारे साथ बेस्ट ही होगा। वी शुड राइट। ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग। Yes, yes. So this is what is your mantra to keep going ahead. क्योंकि नॉर्मली जो लोग हैं, जो दूसरे भी जो लोग आते हैं, स्पेसिफिकली पीपल कमिंग अप फ्रॉम ना, लाइक आर्टिस्ट हु कम फ्रॉम आउट स्टेशन से आते हैं, बहुत उनकी एक आध दो चल जाता है, उसके बाद में कुछ फेलियर्स हो जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी हर बार आपको ही सिलेक्ट किया जाए। There is a full of competition today. It's not just about the same industry. You go in any competitive field, it is always there. तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? फेलियर के लिए आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूंगी बस कि आपको जो आप जो गोल लेकर आए हो, जहां आपको पहुंचना है, आपके दिमाग में सिर्फ आप वही चीज रखो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। बाकी आप कोई भी फील्ड में जाओगे, बहुत लोग आएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए और बहुत डिमोटिवेट करने के लिए, बट हमें वो सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ आप यही सोचो कि आपको कहाँ पहुंचना है, आप वो जगह देखो, देन यू विल रीच ऑफ कोर्स। Definitely. And now talking about you, I can read the comments also. People are so अभी जैसे अभी आपकी सीरियल्स चल रही है, पर इसके अलावा यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग, फॉर टेलीविजन से के अंदर ही अभी फिलहाल आप अटके हुए हो कि इससे बाहर निकले? बिकॉज यू आई एम रीडिंग द कमेंट्स फ्रॉम नहीं, रामोजी ऑफ फिल्म कोर्स। सिटी आल्सो। या डेफिनेटली सो डेफिनेटली ऑफ कोर्स। सो आपके, आप अभी फिलहाल जो है परफॉर्मेंस कर रहे हो, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, इसके अलावा व्हाट आर योर बेसिक टारगेट फॉर द कैरेक्टर्स इन परफॉर्मेंसेस व्हिच यू वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर? ऐसा आपने कुछ सोचा हो कि आई वुड लाइक टू परफॉर्म इन सच अ वे, और आर यू एनी ऑफ योर ड्रीम कैरेक्टर, एनी ऑफ योर ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हो? मुझे एक एक रोमांटिक वाला कैरेक्टर मैं करना चाहती हूँ इन फ्यूचर।
Understood. And और मैं एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ, एक इंडिपेंडेंट लड़की जो बहुत कुछ कर सकती है। मैं एक कैरेक्टर ऐसा भी करना चाहती हूँ कि जो हम लड़कियों पे होना चाहिए, जो जो लड़कियां बाहर से आती हैं, स्ट्रगल करती हैं इस फील्ड में, जिस तरह की वो स्ट्रगल करती हैं, और हर लड़की के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि हमें पीछे नहीं हटना है और लोगों की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें absolutely. आगे पहुंचना है, बहुत आगे तक पहुंचना है। तो मैं बस उन लड़कियों से ही ये कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों की बातें कभी मत सुनिए, बस आपको जहाँ पहुंचना है आप वो बस आपके माइंड में रखिए, यू विल डेफिनेटली That's रीच देयर। wonderful. So you can become a next motivational speaker. I feel like people should be following. You're an influencer for so many people because it's all about today. Everyone needs that motivation that you've been spreading through your words. So that's really absolutely perfect. And you've been maintaining yourself. You've been maintaining your hair, your skin because no wonder you're too cute, too young, too for. And हर youngsters आजकल बहुत सारे अपने घर पर भी rehearsals अपने आप को practice करते ही रहते हैं. And in this pandemic, जब लोगों के salons are not available, specifically gyms are not, how do you maintain yourself, your skin, your beautiful hair, dresses, your body? So इन सब के पीछे क्या सीक्रेट है? बस घर के नुस्खे आजमाए हैं और कुछ नहीं। So घर anything which के you would नुस्खों like to से हम share with everyone? आपकी कोई अ, टिप्स जो लोगों को आप शेयर करना चाहेंगे? मैं फेस के लिए बताना चाहूंगी, स्किन के लिए कि चंदन पाउडर एंड टर्मरिक एंड बेसन आप और दही, ये चार चीजें आप यूज करिए, आपको कोई सलोन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। Wow. वही बता रही हो, so इट beautiful विल ऑलवेज because you've मेक been योर स्किन maintaining ग्लो। your skins. Yes, so these are the tips which you've been sharing और definitely मैं ये अलग से कट करके शेयर करूंगी हर किसी के साथ because it's important to respect the mother nature as it gives us the best cosmetics by the universal. तो डेफिनेटली इस चीज के लिए की ही जाएगी. एंड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, आप फिटनेस के लिए क्या प्रेफर करते हैं? फिटनेस के लिए मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ घर का ही खाना। बाहर का मैं वैसे भी बहुत बहुत कम खाती हूँ। मुझे हमारे शूट का होता है तो हमको, अगर हम शूट के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो हमको बाहर खाना पड़ता है, बट मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का ही खाना खा लूँ। दैट्स वंडरफुल. तो ये सब चीजें हैं बिकॉज आज तो वैसे भी पैंडेमिक में बाहर का खाना सबका बहुत कम हो ही चुका है, लेकिन ये इससे ये तो एडिक्शन मिल जाए कि हमें घर का खाना ही खाना है. ये हाँ। पैंडेमिक हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट रहा. डेफिनेटली हर किसी की अपनी एक स्टोरी इससे जुड़ी है. आपके आपके साथ हाउ वाज योर पैंडेमिक इन दिस पास्ट 2 years? इट वाज नाउ वी आर द सेकंड फेज एंड इट सीम्स दैट वी आर गोइंग टू बी स्टेपिंग इनटू थर्ड फेज ऑफ कोरोना वायरस. सो ये जो पीरियड था ये आपके लिए कैसा था? ये पीरियड मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे बहुत बहुत टाइम मिला मेरी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, बहुत सारी चीजें जानने के लिए एक दूसरे के बारे में। और मतलब जो जो जिस लाइफस्टाइल में हम रहते हैं, जिस फील्ड में हम हैं, हमें हमारी फैमिली के साथ में वो टाइम मिलता ही नहीं है। हम अपनी शूट्स में इतना बिजी होते हैं, अपनी हर चीज में इतना बिजी होते हैं कि हम लोग फैमिली का टाइम कभी स्पेंड ही नहीं कर पाते। वो किसी रात में आते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह अगेन देन सेम रूटीन। तो मुझे ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ मेरे फैमिली के साथ मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और इन दिनों में तो ज्यादातर शूट के लिए भी आउटडोर्स तो सबके बंद ही थे, तो कहीं हाँ। आपका आउटडोर भी जाना नहीं है. पर मुझे ये चीज पता चली थी दैट यू लव ट्रैवलिंग एंड पीपल ऑलवेज बीन कंप्लेनिंग अबाउट कि शी इज द वन, शी ऑलवेज वांट्स द शूट्स टू बी गो आउट स्टेशन समवेयर. सो व्हिच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर दिस? आउट स्टेशन के लिए तो हमारा शूट गया था, वहां पे हम लोगों ने तो काफी काफी मजे किए, बहुत मुझे कुछ। मुझे न्यूज मिली थी. आई नो अबाउट इट. बहुत बहुत हम लोग ने मजे किए, बहुत अच्छा रहा हम लोग का वो आउटडोर। मतलब एक वहां से आने के बाद वी आर लाइक फैमिली, हमने बहुत कुछ जाना एक दूसरे के बारे में, सारे एक्टर्स ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना, जो हम साथ में रह के यहाँ पे डेली शूट में हम नहीं जान पाते थे, बट वहां पे जाके बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ है सबका, और वंडरफुल. बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया सब लोगों ने। तो जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपके लिए विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, तो आप क्या कहेंगे? माय फेवरेट डेस्टिनेशन तो आउट ऑफ तो सभी को जाना है, बट यहाँ अगर इंडिया में जाना है तो मनाली। वंडरफुल. मनाली आई दैट्स वुड प्रेफर। नो वंडर, वो आपके इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये मुझे
इसके बारे में आई कैन रीड इट ऑल्सो। जहां तक बात आपकी सीरियल की है, तो सीरियल्स के में आप परफॉर्मेंस करते वक्त कोई भी ऐसा फैन का इंसिडेंस जो आपको याद हो, जो बहुत ही इमोशनल हो आपके साथ में, कोई ऐसा मोमेंट जो आपके इमोशंस से जुड़ा है? आई गेस इन हैदराबाद ओनली। हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे। और सबसे लास्ट डे जब हमारा शूट था, जब हम नेक्स्ट डे हम लोग मुंबई के लिए निकलने वाले थे, तो वो दिन बहुत ही इमोशनल रहा है सभी लोगों के लिए, बिकॉज वहाँ हम लोग सब लोगों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतने टाइम हम सब एक साथ रहे। तो नेक्स्ट डे हम लोग को जाने के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था सब लोग को, वो प्लेस छोड़कर आने के लिए। आई अंडरस्टैंड। अभी आपकी सीरियल चल रही है, इसके अलावा इसमें अभी आपका क्या कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस आने वाला है, विच एवरीवन विल बी लाइक एक्साइटेड टू सी यू इन, विच यू फील लाइक कैन शेयरिंग? कैरेक्टर आगे का तो अभी आई डोंट नो, बट फॉर नाउ अभी जो चल रहा है वो तो अभी बहुत ही कभी पॉजिटिव हो जाती है वो जूही, कभी नेगेटिव हो जाती है। तो वो पॉजिटिव तो बहुत ही कम होती है, नेगेटिव ज्यादा हो जाती है कहानी के लिए, क्योंकि वो अपनी सिर्फ फैमिली की ही सुनती है। वो कभी खुद की अगर उसको बोलना भी रहता है तो वो सिर्फ पहले यही देखती है कि मेरी फैमिली के साथ में गलत हो रहा है, कहानी मेरी फैमिली के साथ में गलत कर रही है, भले से कहानी सही भी हो गलत भी हो, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है, एंड दैट मेक्स हर कैरेक्टर फुली नेगेटिव। तो जब ये जूही के कैरेक्टर के साथ में आपको कंपेयर किया जाए इन योर डे टू डे लाइफ, सो हाउ वुड यू लाइक डिस्क्राइब योरसेल्फ इन बोथ द कैरेक्टर्स? मेरे और जूही में कॉमन है कि हम दोनों बहुत ही कम बात करते हैं सबसे पहला। और बाकी आई थिंक मैं रियल लाइफ में तो वैसे ही बिल्कुल मेरे कैरेक्टर की तरह नहीं हूँ जो मैं मतलब एक ही चीज को मैं सपोर्ट करूँ। ऑफ कोर्स राइट एंड रॉन्ग तो देखना ही है। तो सिर्फ यही एक चीज कॉमन है कि हम दोनों बहुत कम बातें करते हैं। वंडरफुल। तो आपका जब ये कैरेक्टर के बारे में बात करें, जिसकी जूही के कैरेक्टर, बिकॉज एवरीवन लव्स यू फॉर हु जूही इज, नो वंडर कैरेक्टर आपका जो है नेगेटिव में चला जाता है, कभी कभार पॉजिटिव में, ज्यादातर नेगेटिव में होता है, लेकिन तो दैट एवरीवन हैज बीन अप्रिशिएटिंग फॉर दिस। तो नॉर्मली क्या हो जाता है जब हम आपको इस अवतार में देखते हैं, तो इट इज वेरी कॉमन दैट यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम कैरेक्टर नेक्स्ट टाइम। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? Yes, I am prepared for it. ये चीजों के बारे में बताइए, क्योंकि अभी म्यूजिक एल्बम में भी आजकल पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इट्स मोर ऑफ लाइक इन फुल यू कैन से सीरीज, तो उसमें भी इस तरीके से परफॉर्मेंसेस की गुंजाइश होती है। तो आर यू ओपन फॉर दैट ऑल्सो? बिकॉज आजकल म्यूजिक एल्बम्स, अभी भी मैं रीड कर रही थी, पीपल आर वुड यू बी लविंग टू वर्क विद अस इन म्यूजिक एल्बम। सो आप तो नो वंडर बहुत अच्छी डांसर हैं ये, तो आई फील लाइक नेक्स्ट वी शुड बी वाचिंग यू इन म्यूजिक एल्बम। Yes, I would love to do it if I get. That's interesting. Now in this pandemic, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप ज्यादातर घर पे रहते थे, तो what was that one thing which you have learned in this pandemic? क्या चीज सीखी है आपने इस pandemic? मैंने सीखा है कि जो चीजें हम लोगों को अपना इक्वल टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैंने ये चीज हमेशा अभी इस टाइम पे सीखी है कि मुझे मेरा टाइम दूसरों को भी देना है। मेरा टाइम सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है वो टाइम। मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम, थोड़ा सा टाइम जो मेरे लिए बहुत खास है, मैं उन लोगों को मेरा थोड़ा टाइम दूँ। तो मैंने अब ये चीज सीखी है और मैं अब ये चीज बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। That's wonderful. One of your fan is asking which is the funniest moment of shooting. आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट जो बहुत ही फनी रहा हो शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो हम कभी कभी हम लोग यूजुअली हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। लाइंस रीडिंग के लिए जब हम बैठे रहते हैं, तब हम सब रीड करके पहले हम थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते हैं, और वही चीज अगर हमको वही सेम चीज हमारे साथ में वो सेट पे हो जाती है एकदम, हाँ एकदम स्क्रीन पे वही सेम चीज हमारे साथ में हो जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट हो जाता है। फिर हम लोग को वो टेक करने के लिए इतना टाइम जाता है, इतने सारे टेक लगते हैं क्योंकि सभी हंसते रहते हैं। So this is the answer for Mr. रंजीत जी। आपका ये सवाल था। एंड इसके अलावा जैसे अभी आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, आई कैन सी योर नेचर, यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इनटू योर परफॉर्मेंस।
सो इसके अलावा सपोज इन फ्यूचर अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या होती? आई गेस एरोस्पेस. Again, that comes to a glamour world. So you are involved into a glamour industry. किसी ना किसी तरीके से आपने डिसाइड कर ही रखा था कि मुझे ग्लैमर में जाना है. That's क्योंकि interesting. हमेशा से ही बचपन से ही फैशन का शौक था, डांसिंग का शौक था और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक था. तो इसलिए स्क्रीन पे दिखना था, बट ये नहीं पता था कि कैसे दिखना है. एक्टिंग का तो पता ही नहीं था, बस ऐसा लगता था कि नहीं मॉडल्स भी स्क्रीन पे दिखती हैं. एक्टिंग का भी सोचा ही नहीं था. राइट, वंडरफुल. इसके लिए जैसे कि आपने बताया अभी आप इस लाइन इंडस्ट्री में यू ट्राइड, यू थॉट एंड यू स्टेप्ड इनटू इट एंड यू अचीव्ड इट. ऐसा हर किसी के साथ तो होता नहीं है. तो जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं या आपकी तरह दे वांट टू स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ एक्टिंग, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको जो चाहिए वो आपको, अगर आप चाहोगे तो ही मिलेगा. अगर आप उस पर फोकस रहोगे तो ही वो चीज आपको मिलेगी. तो मैं बस यही चाहूंगी, बस एक ही चीज पे फोकस करो और वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है. Absolutely. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नो वंडर आपकी वे ऑफ, बिकॉज दिस इज द मोटिवेशन विच यू बीन शेयरिंग विद अपकमिंग स्टार किसी ने कहा, तो नो वंडर अभी आपकी जो अचीवमेंट के लिए हम सब प्रेजिंग करने के लिए पहले खड़े रहेंगे इसके लिए. एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ परफेक्ट वुमेन. मैं लास्ट बार आपसे ये पूछना चाहूंगी, योर मैसेज फॉर ऑल द रीडर्स एंड व्यूअर्स ऑफ परफेक्ट वुमेन मैगजीन. मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी हर चीज आप अपने ऊपर एज ए कॉम्प्लीमेंट लीजिए, क्योंकि आप चीजों से सीखते हैं. आप कभी भी उस कॉम्प्लीमेंट को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाइए और आगे बढ़िए. Absolutely, that's so nice and the golden words. दृष्टि, मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, because since you are my perfect woman and we are talking about all perfections, who is your perfect woman in your life? Of course, my mom. That's wonderful. That's what I expected also. That's the gift and compliment definitely that you can give to your loved ones. इसके अलावा, since you are a woman and we're talking about women empowerment, so suppose if you've been given a chance to empower some women, what would be that? आप क्या करना चाहोगे जिससे आपको लगता है कि you can be a part of it? How would you prefer? मैं यही बोलूंगी कि आप वुमेन को हर चीज का राइट नहीं होता है. हर किसी का मतलब जो वो चाहती है वो नहीं कर सकती है. तो मैं यही सबको कहना चाहूंगी, सारी लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए. आपको ही सब कुछ करना है. आपको ये नहीं दिखाना है इस वर्ल्ड को कि हम कुछ नहीं कर सकते. हम सब कुछ कर सकते हैं. So strong. You at this age, आपके मॉम ने आपको पूरी तरीके से मैच्योर सोच, मैच्योर टॉकिंग्स के साथ में प्रिपेयर करके इंडस्ट्री में छोड़ा है कि जा बेटा, नाउ यू आर कंप्लीटली फ्री. इवन इफ आई एम नॉट देयर, you can handle the situation very well enough. Yeah, I'm handling. That's really wonderful, and all the best and all the best wishes from me and my entire team of Perfect Women Magazine. We will be catching you again and again because in here we sign off. But all the best, and we want to rock. जूही तो rock कर ही रही है. जूही के साथ साथ अभी दृष्टि भी rock करे. Thank you so much. It was nice talking to you. Thank you. Same here. Thank you so much for being a part of Perfect Women. Thank you. Take care. Yeah. Bye. हाँ रंजीत जी, ये सवाल हम जब नेक्स्ट टाइम पूछेंगे उनको 100% कि उनके स्कूल टाइम का क्रश क्या है. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ परफेक्ट वुमेन. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं. आप लोगों ने हमारे साथ रहे. यू जॉइंड अस एंड आई थैंक एवरीवन. यस, विनी अग्रवाल, थैंक यू सो मच विनी. Again, I'm signing off for today. Thank you so much.